Yeah, good afternoon, everyone. Can we start? Okay, let us wait for 2-3 minutes more. जब सब ज्वाइन कर लेंगे, I'll start. Okay, so let's wait for 2-3 minutes. Ma'am, which chapter? Today I think I'll start with Unit 7. एक Unit 7 मैंने बीच में बोला था बाद में करेंगे. So we will do Unit 7 first. Yeah, I was just waiting for everyone to join in. I'm just starting. Okay. Okay, so I'm sharing my screen and let's start. Okay, so this is Unit 7, and actually, I left this unit because it will be easier for you now to understand this particular unit, having gone through different physiological stages also. Okay, so I'll start, and then if there are any doubts, I'll take them on. So, in this Unit 7, we are basically concerned with food, energy, activity pattern, and body weight. Okay, now you just have to go back. ठीक है जहाँ से हमने start किया था. So we started off with the thing that why food is important. If you remember in the first class, we did that there are physiological functions of the food, psychological, and also socio-cultural functions of the food. जिसमें से no doubt the most important one is physiological function, because food provides you with energy.
This energy can come from, basic three macronutrients, carbohydrate, protein, and fats. Okay, but yes, dependency, the use, it all determines that what would be the preferred source for these. Okay, what would be the preferred source for this energy? Okay. Now, when I talk about food, we have learned that it is a basic source of energy. And if you look at the SI unit, we always say that the SI unit for energy is kilojoules. Okay, और किलो कैलोरीज, बट इन इंडियन सिनेरियो वी बेसिकली यूज किलो कैलोरीज, बिकॉज हमारे जितने भी ईआर और आरडीए हैं, अगर आप टेबल में ध्यान से देखोगे तो एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन किलो कैलोरीज। ओके, तो आपकी जो कुछ कुछ फूड की बुक्स हम जो यूज़ करते हैं, जैसे IFCT मैनुअल, इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल्स एंड सो ऑन, उसमें जो एनर्जी मेंशन्ड है दैट इज गिवन इन किलो जूल्स, राइट? सो व्हेन यू विल बी यूजिंग दीज मैनुअल्स लेटर, व्हेन यू डू सम एनहांस्ड कोर्स, वहाँ पे आपको याद रखना होगा कि किलो जूल्स को आपको किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, now, the other important thing which they highlight is that, which we have already discussed, right? So, foods which have larger percentage of water, they are low calorie content. This is a basic thing. तभी आप देखोगे कि fruits, particularly like muskmelon, watermelon, और सब्जियां like cucumber, right? जिनमें moisture ज़्यादा होता है, जिसमें water का percentage ज़्यादा होता है, उसमें you will actually see that the energy content is low. तभी when you are on a weight loss diet, you want to lose weight, you want to maintain weight, या आप किसी कारण से अपना एनर्जी का इंटेक कम करना चाहते हो, यू प्रेफर टू हैव दीज फूड्स, योर GLVs, because all these are the things which are comparatively high on moisture, high on water content, and therefore proportionate, calories which you consume by eating them is also comparatively lower. Okay, but then you will see that mostly your carbs rich foods are obviously high on calories. ठीक है, तभी तुम्हारा सीरियल्स का पार्ट हो गया, पोटैटोज हो गए, रूट्स एंड ट्यूबर्स हो गए, they are high in calories also. Why? Because mostly they have a major proportion which comes out from carbohydrates, but the highest you will see in fat as calories. Okay, so any food which is high on fat will be very very high on calories also, and this we know by the fact that 1 gram of fat actually gives you 9 kilocalories. Okay, now the other important aspect is that how you prepare your food, the cooking changes which occur, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप रॉ राइस लेते हो, लेकिन जब उसको आप पानी में कुक करते हो तो वो अपना वेट डबल या थ्राइस कर लेता है, तो वो वेट में बढ़ गया है, बट ओरिजिनली आपने 1 कटोरी चावल ही लिए थे, तो वो 1 कटोरी चावल जब बनने के बाद में भी थ्राइस हो गया, तो कैलोरीज तो 1 कटोरी चावल वाली आई ना जो ओरिजिनली थी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट डिफरेंट cooking methods do impact the total calorie intake also. Like for example, if we talk about, let's take an example of what, okay, egg, right? अब जो अंडा है उसकी अपनी कैलोरीज होती है, ऑन एन एवरेज वी से कि अंडे का जो वेट होता है दैट इज अराउंड 50-52 ग्राम्स, राइट? अब आप उसको कैसे कुक करते हो, उसमें जितनी भी कैलोरीज हैं, supposedly it gives you 100 kilocalories, just an example, right? अगर वो इतनी दे रहा है, but then it is also dependent on that what cooking method you are evolving. If you are boiling it, right, तो कोई कैलोरीज ऐड नहीं हो रही है। अगर आप ऑमलेट बना रहे हो, कैलोरीज ऐड नहीं है, ठीक है। अगर आप स्क्रैम्बल्ड एग बना रहे हो और उसमें अगर आपने कुछ वेजीज भी डाली हैं तो और कैलोरीज बढ़ जाएंगी। अगर आप बिल्कुल ऑयल नहीं डाल रहे हो, यू आर हैविंग अ पोच्ड एग or a fried egg. So, depending upon this thing, you will understand that, the cooking method also influences the total, calorie count of your food. जैसे for example, you know that potatoes are high carb food, right? अब potatoes को भी अगर आप boil करके खा रहे हो, calories will be very different. You are roasting them या microwave में heat करके खा रहे हो, उसमें शायद आपने fat कुछ भी use नहीं किया। लेकिन अगर आप आलू चाट खा रहे हो, you are frying that, potatoes in oil or ghee, right? Then the calorie content increases considerably. Okay, so you have to see that raw और cooked में क्या फर्क होता है, and what is the different different cooking procedures which do impact these things. जैसे आजकल I see a lot of people saying that when we go out we prefer to have salads. What type of salads, right? अगर वो सैलेड में मेयो की ड्रेसिंग डली हुई है, then they are equally high in calories as your normal bowl of something else, right? अगर आप उसके अंदर इतनी कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ मेयो, क्रीम, या वो जितनी भी सॉसेज एंड बाकी सब चीज़ें डालते हैं, अगर उतनी ही कैलोरी सैलेड से आ रही है, तो सैलेड विल नॉट हेल्प टू रिड्यूस डाउन. So that you need to really understand. So they have given you like different different foods ka moisture content, and correspondingly what is the total carbs, fat and energy which comes in. Now there is this thing which you can just note down. यहाँ पे लिखा हुआ है ना IFCT 2017, right?
So what is this IFCT 27? Sorry, 2007. This IFCT stands for Indian Food Composition Tables. Okay, Indian Food Composition Tables, right? And obviously this book was recently revised in 2017, तो इसलिए आगे हमेशा ईयर मेंशन किया जाता है. So you know, इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल्स का जो एग्रीमेंट है, और या सो दैट इज IFCT. ओके, अब IFCT एक्चुअली में क्या है, अगर आप चाहो तो दिस बुक इज फ्रीली अवेलेबल. यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस मैनुअल. इट इज़ अ वेरी थिक मोटा वाला मैनुअल. एंड इसमें एक्चुअली में व्हाट हैज़ बीन डन इज कि ICMR और NIN ने इंडिया के जितने भी कॉमन पॉसिबल फूड्स वी ईट, राइट, अंडर डिफरेंट डिफरेंट हेड्स. जैसे आप पहला पेज खोलोगे तो यू विल सी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट. अभी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में हर पॉसिबल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होगा. जैसे यू कंज्यूम मिल्क, what type of milk, पनीर हो गया या whatever. ऐसे सीरियल्स के अंदर you will be having different varieties of rice, wheat, then wheat flour, then maybe ragi, suji, you know, every possible thing which is related to cereals, and so on for your pulses, vegetables, whatever. Even you know they have given different varieties of mangoes. जैसे आप सफ़ेदा आम खाते हो या कोई और तोतापुरी आम होता है, कुछ भी, you know, तो different ब्रिंजल्स की जो है वो 10-13 टाइप की वैरायटीज गिवन है. सो यू विल हैव जैसे भरता वाला बैंगन या लॉन्ग ब्रिंजल, शॉर्ट वंस. So every possible variety is given, and towards the end they have also pictorially depicted all these things. So you know, if you don't know that what is the Hindi name, what is the English name, या मुझे देखने में समझ में आ जाएगा कि कौन सा बैंगन था, तो everything is given there. Now this book compiles in details every possible nutrient for that particular food group. Okay, जैसे अब मुझे देखना है कि मैंने, भाई किसी ने मुझे बोला कि दिन भर में मैंने 100 ग्राम चावल खाया, वट एवर, पूरे दिन में, यू रिमेंबर डाइटरी रिकॉल ना. तो मान लो कि इसके अंदर से आया कि मैंने 100 ग्राम चावल खाया है. अब उसने खाया है, लेकिन आप ये कैसे निकालोगे कि उसका कैलोरी कंजम्पशन कितना था, राइट. सो दैट यू यूज यूजिंग दिस पर्टिकुलर मैनुअल. हर एक फूड का 100 ग्राम का एनर्जी, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, वाइट, एवरीथिंग इज गिवन देयर. ओके, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट कि भाई बुक में 100 ग्राम गिवन है, इसने 100 खाया है तो सेम रहेगा. कोई कहता है कि मैंने 200 खाया था या मैंने 80 ग्राम खाया था, तो उसके हिसाब से यू विल बी डूइंग दिस कैलकुलेशंस, एंड एक्चुअली यू कैन फाइंड आउट दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल कैलोरी, प्रोटीन, आयरन दैट इज गोइंग इन. ओके, तो उन्होंने ये एक बुक का छोटा सा आपको जो ग्लिम्स है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे हैव गिवन that the source is IFC. Okay, and this will be based on 100 grams, because उस मैनुअल में बाय डिफॉल्ट सारे के सारे फूड का जो भी फूड कॉम्पोजिशन गिवन है, दैट इज फॉर 100 ग्राम. सो इफ आई से दैट cucumber or tomato, so that means 100 gram. So that means 100 grams of cucumber gives you roughly 3.5 grams of carbohydrate. फैट मिनिमल है, और कैलोरीज कितनी है, 19.6. Now if you compare this 100 gram of cucumber with let's say wheat flour, राइट, 100 ग्राम ही है ना सब चीज़ें. अब उसमें देखो कुकम्बर में मॉइस्चर कंटेंट 93 है. इट हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर, लॉट ऑफ वाटर इन दैट, राइट. तो उसके हिसाब से अभी हमने पढ़ा कि उसकी जो एनर्जी है वो भी कम होगी, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी फूड्स होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, कंसिडरेबली उसका जो एनर्जी कंटेंट होता है वो कम होता है. ठीक है, ऐसे आप व्हीट फ्लावर पे आओ, वी नो कि व्हीट फ्लावर में मॉइस्चर नहीं होता. इनफैक्ट अगर उसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो तुम्हारा आटा खराब हो जाएगा. ठीक है, इट इज़ ड्राइड. सो 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लावर में यू कैन सी कार्ब का कंटेंट कितना कंसिडरेबली हाई है ना, 64.17, राइट. एंड 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लावर प्रोवाइड्स यू विद 320 किलो कैलोरीज. सिमिलरली दे हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ, देखो, ग्राउंड नट्स. ठीक है, नट्स है ना एक टाइप का, ये भी 100 ग्राम है. अब 100 ग्राम ऑफ ग्राउंड नट्स में 7% इज द मॉइस्चर, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली यू गो एंड सी द कैलोरीज, इट इज 520, राइट. तो ऐसे ही दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स. हर एक पॉसिबल फूड आइटम का एनर्जी, प्रोटीन, vitamins, मिनरल्स, फैटी एसिड प्रोफाइल, एवरीथिंग इज गिवन. You just go on Google, you just write IFCT 2017, and you will get a downloadable PDF available for this particular manual. ठीक है, so is this clear to all यहाँ तक? Any doubts, anything you want to ask? किसी को कुछ पूछना है भाई? यहाँ पे जो एक्सरसाइजेस है उसमें एक दो क्वेश्चंस है ना कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्राइंग ऑन कैलोरी वैल्यू ऑफ रेजिन्स एंड हाँ, explain why tomatoes have less than half the calorie than carrot.
तो वो वाटर हाँ कंटेंट की वजह से, हाँ राइट? हाँ, दैट इज वाटर ऑलवेज। कंटेंट ज्यादा है हाँ टमाटोज में, इसके लिए कैलोरी लेस है। एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, ठीक है, वही एक्सप्लेन कर रहा है ना ये हाँ आंसर हाँ में। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज योर एनर्जी नीड्स। और जब हमने ये प्रेगनेंसी ओल्ड एज सब कुछ पढ़ा था, उसमें भी वी हैड डिस्कस्ड कि हाउ योर एनर्जी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स चेंज। ओके, तो इसमें एक्चुअली में उसका बेसिस गिवन है। सो नाउ इट विल बी इजियर फॉर यू टू कोरिलेट। ओके, दैट इज व्हाई आई मिस दिस रिलेटेड विथ मी। सो नाउ वी नो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आपके एज ग्रुप के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से, आपके फिजियोलॉजिकल स्टेट के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। योर बॉडी इज ऑल द गेम ऑफ कैलोरीज। यू हैव टू बी इन अ यू नो you have to be in a balance of calories. Your energy balance should be maintained, जहाँ पे आपका input should always be equals to your output. This we have discussed, right? अगर over the period of time आपका intake ज़्यादा जा रहा है और output कम है, that is also गड़बड़. You will be overweight or obese. You will gain weight because that extra amount of calories gets stored in your body. And I'll come on to how, right? The second part is अगर negative energy balance है, वो भी गड़बड़ है, राइट? बिकॉज आपको जितने की ज़रूरत है, जितनी बॉडी की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उससे कम खा रहे हो। सो यू विल बी बिकमिंग अंडरवेट एंड क्रॉनिकली malnourished ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि ऑल योर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैलेंस, वेयर योर इनटेक शुड बी इक्वल टू योर आउटपुट। एंड दैट इज वाई हमने ये डिस्कस किया था कि एनर्जी के लिए यू ऑलवेज हैव EARs and you don't have RDAs because EAR is the minimum requirement. एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? मेरी बॉडी को मिनिमम जितनी चीज़ की ज़रूरत है, मैं बस उतना ही कंज्यूम करूँ। मैं वो सेफ्टी कुशन या सेफ्टी मार्जिन ना लेके चलूँ, क्योंकि एनर्जी के केस में थोड़ा सा भी एक्सेस कैन लीड टू प्रॉब्लम। ओके, सो दैट इज वाई वी ऑलरेडी नो दैट वी ओनली हैव एनर्जी का ERs एंड नॉट दी RDs। ओके, नाउ अगर हम ये पूछें कि भाई ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, दिस इज ऑल्सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव डिस्कस्ड, बट नाउ यू विल बी एक्चुअली जॉटिंग डाउन ऑल दी पॉइंट्स टुगेदर, राइट? तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स के जो दो सबसे बड़े पिलर्स होते हैं, दैट इज योर एक्टिविटी एंड योर BMR। ठीक है, अब एक्टिविटी में देखो इन्होंने बड़ा बड़ा यहाँ पे भी दिया हुआ है, द इनवॉलेंट्री एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी एंड द वॉलेंट्री एक्टिविटी, राइट? वॉलेंट्री हम सब पढ़ चुके हैं। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप जिमिंग करते हो, आप पैदल चल के जाते हो या आप कार पे जाते हो, सो वट एवर, आप घर का काम खुद करते हो, या देर इज सम मेड हु इज डूइंग सम वर्क, तो वो मेड की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। सो दैट इज ऑल योर इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ योर बॉडी एंड वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ योर बॉडी, राइट? सो वॉलेंट्री इज कॉन्शियस, आप खुद से वो एफर्ट कर रहे हो वो काम करने के लिए। यू आर डूइंग गार्डनिंग, यू आर वॉशिंग क्लोथ्स, यू आर चॉपिंग, यू आर कुकिंग, वट एवर। सो एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी विच यू आर कॉन्शियसली डूइंग, ओके, इज वॉलेंट्री। आप खुद से ये चॉइस कर रहे हो वो एक्टिविटी करना, राइट? इनवॉलेंट्री में कौन सी आती है? वो एक्टिविटीज जिन पे शायद मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इफ आई एम स्पीकिंग, आई कैन नॉट आस्क माई हार्ट टू स्टॉप बीटिंग, या किडनी टू स्टॉप फिल्टरिंग दी ब्लड, या मेरे लंग्स में जो कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो हो रहा है, एंजाइम्स जो है वो मेरी बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं, देर आर thousands of reactions which are going. So this is the activities which I have no control over, and this needs to be carried out 24/7. and यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, this is known as BMR. Okay, and what is BMR? Basal metabolic rate. And sometimes, I don't know how, some people get confused between BMR and BMI, right? BMI is body mass index. That is altogether a different thing. जहाँ पे it is the index of your nutritional status. आप underweight हो, overweight हो, obese हो या normal हो, right? So that is BMI. BMR is what? Basal metabolic rate. Okay. So technically, this is related, or this is measured as the energy which you require, or energy which is used per kg body weight per hour. और ये per kg body weight per hour कहाँ से आती है? जो भी आपकी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। BMR फाइंड करने के लिए भी, दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, वी हैव रिएक्शंस। ठीक है, तो ये जो ICMR की ये ER RDA की डिटेल्ड बुक है, उसमें इंडियन वुमेन और इंडियन मेन के लिए we have specific reactions which are given, जिसमें you just need to put up your weight
your age, and you need to calculate that what is your BMR, right? तो सपोजिंगली वो रिएक्शन मैंने फीमेल के लिए डाली और निकल के आया कि 950, just an example, right? So that means at least in a day you require 950 kilocalories which will be related to your involuntary actions of the body. उतना तो आपको इनटेक करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी फंक्शंस का, जो एसेंशियल है, जो वाइटल है, जो आप स्टॉप नहीं कर सकते, जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एंड उसके ऊपर योर एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी। आप कम खा रहे हो तो आपका कम एनर्जी होगी। अगर आप यू आर गोइंग टू जिम, यू आर रनिंग, डूइंग योगा, आपकी कैलोरीज उस हिसाब से भी बढ़ जाएगी। So that is not in your syllabus, so don't get confused. You just need to understand that the two major components are what? Voluntary and involuntary. Voluntary are the conscious activity which takes place, right? And involuntary के अंदर तुम्हारा सब कुछ BMR होता है। So is this clear up till here? Any doubts? किसी को कोई डाउट? हम्म? Okay. Now, अब ये बीएमआर को हमारी बॉडी में कुछ हद तक एक हार्मोन जो है वो सेट रखता है या कंट्रोल करता है। ओके, एंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन इज विच कॉमनली थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है दैट इज द मेन ग्लैंड, राइट, विच एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस योर बीएमआर। Okay, so thyroid gland is one of the most important glands. Why? Because actually what happens is that this thyroid gland is directly related to your BMR, because it is the major gland which is involved with energy ka metabolism, how your body utilizes energy. ठीक है, so all your carbohydrate, protein और fat के metabolism में this gland plays a very very important role. ओके, सो बेसिकली अगर आप देखोगे आपकी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स एनर्जी की होती है ना, 60 to 70% कम फ्रॉम बीएमआर, जो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, एंड रेस्ट इट कैन कम फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी एंड वन अनदर component which I will discuss. Okay, so basically what happens is that this thyroid gland, it actually produces hormones. Okay, and one of the important ones are thyroxine. So आपने नाम भी सुना होगा T3 T4, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है या जिनके घर में कोई पेशेंट है जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इनका 3 तरह के टेस्ट होते हैं। यू हैव TSH which is thyroid stimulating hormone, and that is the hormone which gets stimulated by your thyroid, and in turn you have two others, T3 and T4, that is ट्राई हाइड्रोथायरोइनिन। यू डोंट नीड टू रिमेंबर, आप T3 T4 भी याद रखोगे तो ठीक है, बट यू नीड टू रिमेंबर ये जो थायरोक्सिन है दैट इज T4। ठीक है, so now basically this T4 or this thyroxine actually impacts your involuntary activities। ठीक है, तभी आपने सुना होगा कि जब किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो 2 फेजेस की होती है। बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थायराइड की प्रॉब्लम से वेट गेन करते चले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका वेट लूज होने लग जाता है, पतले हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। एंड जनरली इसको बोला भी होता है कि मेरे को थायराइड है, जिसमें जिसकी वजह से आई एम पुटिंग ऑन वेट। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली ये जो थायराइड हार्मोन है दैट इज रिलेटेड टू योर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ देयर इज टू मच ऑफ थायरोक्सिन विच इज रिलीज फ्रॉम योर थायराइड हार्मोन, एक रेट होना चाहिए ना हार्मोन्स को सिक्रीट करने का। सो इफ देयर इज too much of thyroxine which is secreted by your thyroid hormone, you go into a condition which is known as hyperthyroidism। ठीक है, हाइपर का क्या मतलब हो गया? जरूरत से ज्यादा थायरोक्सिन जो है वो रिलीज कर रहा है, और उसके लिए आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो गया है? फास्ट हो गया है, राइट? सो क्विकली यू विल बी यूटिलाइजिंग ऑल द एनर्जी, एंड यूजुअली दीज पेशेंट्स आर द पेशेंट्स हु लूज वेट। ठीक है, दूसरा क्या होता है? हाइपो। हाइपो से क्या मतलब होता है? Now which page it is? It is unit number 7, right? And page 96. Now if you look at the other aspect of thyroid, दूसरी चीज ये होती है hypo। hypo का मतलब हो गया कम। So when it produces less of thyroxine, it results in a condition which is known as hypothyroidism। अब अगर hypothyroidism है तो मतलब आपकी बॉडी का जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो गया है? वो स्लो डाउन हो गया है। So these are the people who will gain weight। Okay,
तभी जब आपके पास थायराइड के जितने भी मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं हु आर हाइपोथायरॉइड्स, जिनको हाइपोथायरॉइडिज्म की प्रॉब्लम है, उनको वेट लूज करने के लिए बोला जाता है या दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग देयर एनर्जी इनटेक, बिकॉज एज सच दे हैव सर्टेन हार्मोनल इश्यूज जिसकी वजह से they cannot metabolize energy efficiently. Is this clear to everyone? Any doubts in this? Ma'am, joined late. Can I just have a quick recap if you can? क्विक रिकैप में तो यही है कि मैंने अभी सिर्फ ये डिसाइड किया कि आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स कैसे फॉर्म होती हैं, ठीक है, एंड उसमें हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, राइट, और बीएमआर को जो इन्फ्लुएंस करता है दैट इज अ हार्मोन व्हिच इज थायराइड. Okay, thanks. ओके, या ओके, एनीथिंग एल्स क्लास, जो बाकी थे किसी को कोई डाउट? And once we used to say that thyroid is not an issue, right? We are blessed कि हमारी बॉडी में एटलीस्ट ये हार्मोन जो है वो ठीक से काम करता है. But nowadays you will see that most of us are not maybe diagnosed for this particular condition, and thyroid is a big problem now. ठीक है, और थायराइड की फंक्शनिंग के लिए the energy metabolism is related to that, right? So that is why we have two of these things. Now the other important thing they have discussed is that the other thing which influences your energy requirement is obviously the voluntary action. आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ काम ये होते हैं जो आपका ऑक्यूपेशन का पार्ट है, राइट, विच इज पार्ट ऑफ योर ऑक्यूपेशन. यू नीड टू गो टू ऑफिस, राइट, और आपने वहां जाके जो भी टाइपिंग करनी है, काम करना है, वो तुम्हारा ऑक्यूपेशनल वर्क हो गया, ठीक है. सो प्रोफेशन, जॉब, वट एवर यू आर एंगेज्ड इन, दैट बिकम्स वन एस्पेक्ट ऑफ योर वर्किंग. सेकेंड इज whenever you have time, what activities you prefer in your leisure time. Okay, आप पेंटिंग करना चाहते हो, आप गार्डनिंग करना चाहते हो, यू प्ले सम गेम्स, आप टेनिस खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, यू गो इन फॉर अ फुटबॉल सेशन, स्क्वैश, वट एवर, राइट. So these are the activities which you engage in leisurely, right, to relax. अब भाई लेजर एक्टिविटीज में भी होता है कि एक होता है आप बाहर जाके खेल रहे हो और एक होता है आप टीवी देख रहे हो. तो किसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? जो शायद बाहर जाके खेल रहा है या जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, स्विमिंग करने जा रहा है, एंड सो ऑन. एंड द थर्ड्स आर रिलेटेड टू विच आर पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. आपने सुबह उठ के ब्रश करना है, राइट, यू नीड टू हैव अ बाथ, राइट, या आपका जो लेडीज हैं, women हैं, they have this basic thing of washing clothes, cleaning house, putting everything back. So these are the different activities which define that what activity level you are in. Okay, so with this we have divided based on everything activities into three parts, okay, and usually this is asked in your short notes also. So the three major activities which have been divided include sedentary, which is the lightest, right. इन लोगों को सबसे कम कैलोरीज की जरूरत होती है बिकॉज मैक्सिमम टाइम दे आर एक्चुअली सिटिंग एंड वर्किंग. तो जितनी भी तुम्हारी ये जॉब प्रोफाइल्स होती है ना बैठ के काम करने वाली, ठीक है, दैट इज ऑल योर sedentary. So you will have people in banks, teachers, students. So obviously I'm talking about people जिनका अलग से कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. अब अगर वो टीचर है बट शी गोज इन फॉर स्विमिंग, राइट, या शी गोज इन फॉर प्लेइंग बैडमिंटन फॉर एन आवर, या वो जिम जाती है, then she will be in other weight category. Okay, so usually all your office workers which have little or no physical activity, कुछ ज़्यादा movement नहीं होता है, we all are in the category of sedentary. Okay, then you will see एक्टिव और मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल. तो नाउ एक्टिव और मॉडरेटली में क्या आ गया? ये वो लोग हैं जो सेडेंट्री से तो ज़्यादा एक्टिव हैं पर उतने एक्टिव नहीं है कि इनको विग्रेस में डाला जाए, ठीक है. सो इन बिटवीन, सो योर हाउस मेट्स, राइट, और योर हाउस क्लीनर्स, सम रूरल वुमेन जो खुद से काम करती हैं, बिकॉज आजकल रूरल रैंक्स में भी वो नहीं है कि वो खुद से सब कुछ करते हैं, दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग. सो वी ऑलवेज से कि अब जैसे पहले एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो हैं उनको हम विग्रेस में भी डालते थे, बट नाउ with machines coming up, उनको हार्वेस्टिंग के लिए कोई हाथ से खेती बाड़ी नहीं करनी, दे हैव गुड मशीन्स विद देम. तो यू हैव टू सी कि उनके पास क्या एक्सेसिबिलिटी है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन पुट देम इन द कैटेगरी. But the basis is what? That how intense your physical activity is, you are being divided on that basis. Okay, so sedentary or light, then you have active or moderately, vigorous is extreme. Okay, so on regular basis they are involved in some very vigorous or strenuous activities for longer period of hour, right. For example, जो ये manual rickshaw pullers होते हैं, coolies होते हैं, they need to fetch lot of load
ऑन डेली बेसिस। आपने एक दिन सामान उठा के रखा तो आप मॉडरेट में नहीं आ जाओगे, ना हेवी में आ जाओगे। सो ऑन डेली basis, these are the people who are involved in very strenuous or laborious, work for extended period of hour. And that is why we will say that, these are the people who belong to vigorous or vigorously active lifestyle. So this we had discussed earlier also. Sedentary, moderate और heavy का ER देखो, and you will realize कि सबसे कम sedentary के लिए, फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है moderate के लिए, and then it is maximum for the vigorous or heavy activity. तो sedentary, moderate और heavy, vigorous और vigorously active जो है वो आपकी ER में heavy है, ठीक है। तो sedentary, moderate and heavy. Is this thing clear up till here? एक्सक्यूज मी मैम, Yeah. एथलीट्स इसमें मॉडरेट में आएंगे कि विगरस में आएंगे? क्या चीज? एथलीट्स एथलीट्स देखो विग्रेस में भी आ सकते हैं, बिकॉज दे आर इनटू, अगर वो बहुत रेगुलर बेसिस पे कितने घंटे का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो बिल्कुल प्रोफेशनल एथलीट्स हैं तो तुम उनको हेवी में भी लेकर आ सकते हो, ओके, थैंक यू। राइट। बट अगर कुछ एथलीट्स हैं जो बाय दे आर नॉट बाय डिफॉल्ट गोइंग इनटू रेगुलर regimes, दैट इज व्हाई आई सेड दैट इट डिपेंड्स, यू हैव टू सी, ठीक है। ओके, अब एक कोई एथलीट है जो सिर्फ एथलीट, मतलब अगर हफ्ते में मैं सिर्फ 2 दिन ट्रेनिंग में जा रही हूँ, तो हो सकता है कि वही एथलीट मॉडरेट में आ जाए। बट अगर फॉर 5 days, फॉर 6 days, और फॉर ऑल दी 7 days इन अ वीक आई एम इन्वॉल्व इन सम स्ट्रेनर्स एक्टिविटी, मेरी बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है, देन ऑब्वियसली आई विल बी इनटू द विग्रेस वन। थैंक यू। मैम आर्स Yeah. मार्कर नहीं है, लाइक 2-3 आवर्स अगर कोई एक्टिव है? आर्स का कुछ नहीं होता। देखो अब ये अगर मैं तुम्हें इसकी डिटेल में लेके जाऊँ ना, देन इसको भी असेस करने के लिए वी हैव फॉर्म्स, ठीक है। जैसे WHO का GPAC आता है, ग्लोबल फिजिकल एक्टिविटी क्वेश्चनियर, हाँ जी। Okay. तो उसमें जाके आप देख सकते हो कि आप कितने एक्टिव हो और कितने नहीं हो। तो आप, दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट इफ यू हैव टू हैव नॉलेज, तो जो GPAC है ना, ग्लोबल फिजिकल एक्टिविटी क्वेश्चनियर, दैट एक्चुअली असेसेस, वो आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का जवाब देते हुए यू हैव द टोटल नंबर विच कम्स इन। तो इफ इट इज मोर देन 600 फॉर यू इन अ वीक, दैट Okay. इन दैट वे यू आर एक्टिव। अगर वो 600 से कम है तो मतलब यू आर नॉट एक्टिव। नो, एक्टिव तो है, बट कौन सा एक्टिव? हाँ, कौन से एक्टिव की मॉडरेट। भी वो क्लास फिर तब आएगी, कौन से एक्टिव की भी फिर तब वो क्लासिफिकेशन देते हैं, थैंक यू। ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर ICMR आल्सो, दे हैव इक्वेशंस टू पुट अप, एंड उसके बाद से भी यू कैन कम टू नो कि आपका जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है वो कितना है। सो बेसिकली व्हाई वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू एनर्जी एक्सपेंडिचर। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, मेरी एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है इज माई एक्सपेंडिचर, राइट। अब ये जो एक्सपेंडिचर है ये किस पे होता है? पहला मेरे BMR पे, ठीक है। अब मेरा इनकम इज रिलेटेड टू माय एक्सपेंडिचर, इसको अगर इस तरीके से ले लो, तो मेरी इनकम मान लो 100 रुपये आई, पर मुझे पता है कि उसमें से 50 रुपये मुझे इसको देने हैं, 50 उसको देने हैं, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल टाइप का हो जाएगा। इनकम इज समथिंग विच ऑब्वियसली यू नीड टू थिंक, बट दिस इज द बेसिक एग्जांपल आई कैन रिलेट टू। तो सिमिलरली एनर्जी मेरा एक्सपेंड किस पे हो रहा है, पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगी। तो मान लीजिए आपने अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर BMR से निकाला, आपको पता है मुझे 950 किलो कैलोरीज मेरा BMR निकल के आया है, तो दैट मीन्स उतना तो आपको खाना ही पड़ेगा। BMR से नीचे कभी कोई नहीं जाता, बिकॉज BMR इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट विच इज रिलेटेड टू योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। उससे कम खाओगे तो तुम्हारे वो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है वो गड़बड़ा जाएंगी, राइट। सो दैट इज व्हाई वी से कि आपको अगर किसी का भी एनर्जी का इनटेक निकालना है, हमने ER में भी तो एनर्जी के इनटेक देखे ना, 1660 होता है, 2110 होता है, वो कहाँ से आया? तो वो अडल्ट मैन या वुमेन के केस में आया है, उन्होंने ऑन एन एवरेज adult man and adult women का पहले BMR calculate किया है, right? Because we know that 60 to 70% of expenditure या requirement, right, that is based on your BMR. उसके बाद उन्होंने प्लस क्या किया, आपकी कौन सी फिजिकल एक्टिविटी है, तभी आपने देखा सेडेंटरी के लिए अलग है, हेवी के लिए अलग है, और मॉडरेट के लिए अलग है। इज दिस क्लियर नाउ? या मैम। हाँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Okay, and now diagrammatically they have just explained you that what are these different activities, दिख रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप you can determine someone's energy needs also, okay.
Then one thing which is not given here, and actually अभी वो इतना वो है भी नहीं है, but still I would like to tell you, क्योंकि कुछ books में होता है, right? And that is known as specific dynamic action of food, SDA, specific dynamic action of food, राइट। अब ये स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड क्या होता है? अगेन ये 2020 से पहले ये एक बिल्कुल डिफरेंट कंपोनेंट होता था। तो वी यूज्ड टू से दैट देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ योर एनर्जी एक्सपेंडिचर, डीएमआर, फिजिकल एक्टिविटी एंड एसटीए। पहले दो तो आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर। नाउ दिस थर्ड कंपोनेंट दो इज अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, राइट, बट इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस योर एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स। अब क्योंकि ये इतना छोटा कंपोनेंट था, तो 2020 के बाद ये बोल दिया गया कि भाई जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी की नीड्स है, हमने इसमें उसको ही कवर कर दिया है। तो इट इज टेकन केयर ऑफ व्हेन योर फिजिकल एक्टिविटी इज calculated. So that is not for you to understand. But what is SDA? Because कुछ कुछ बुक्स में जब आप एनर्जी एक्सपेंडिचर पढ़ते हो, या इसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी बोला जाता है। आई जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर आपकी जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है, दैट इज इक्वल्स टू योर बीएमआर प्लस फिजिकल एक्टिविटी and plus your SDA, but from 2020 this physical activity is combined with SDA। ठीक है, बट SDA एक्चुअली में क्या होता है? देखो, खाना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हमको पता है ना, ऑक्सीडेशन होगा, इतनी न्यूमरस रिएक्शन होएगी, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होएगी, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड यू आर ईटिंग बाय ऑक्सीडाइजिंग इट, राइट। बट भाई वो ऑक्सीडेशन के लिए भी तो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस ना, और वो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए भी यू रिक्वायर एनर्जी। यू आर अंडरस्टैंडिंग? तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी पहले तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी टू Spend करनी। do these। ठीक है, so that is why that is known as specific dynamic action और thermic effect of food। जैसे हम यूजुअली बोलते हैं प्रोटीन्स के लिए सबसे ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है, और फैट बिकॉज दैट इज वेरी डोमिनेंट, इट रिक्वायर्स लेस एंड इट टेक्स लॉन्गर ऑल्सो टू डाइजेस्ट दैट। So you don't have to go to into details, but you should know that what is thermic effect or SDA. So that is the amount of energy you require actually to produce energy for oxidation of food, for different metabolic things which are related to your food का digestion. Is this clear up till here? Yes, ma'am. हाँ, किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? Okay, any doubts, anyone? So with this we will take a break for 10 minutes and then I'll come on to the maintenance of body weight। ठीक है, so 10 मिनट का ब्रेक ले लो and then I'll come on to the next subsection। Okay. Thanks. Yeah, okay।
Yes, can we move ahead? Everyone back? Start करें? Yes, ma'am. Okay. So any doubts in the previous section? Okay. So now moving ahead with the concept of maintenance of body weight. So, weight is one of the most important concerns, right? Because we know that weight is actually, indicator of your health, right? अगर मेरे को किसी के भी health status के बारे में जानना है, if I say that, the person is gaining lot of weight from past few months, or, the concern is that person is losing too much of weight because of any XYZ condition. तो बच्चों के केस में जैसे हमने कहा था that weight is an acute indicator, same goes for all physiological stages also. Pregnancy में भी हमने देखा that a certain amount of weight gain is desirable, okay, depending upon whatever category the woman was in. Similarly, in case of children also, we learned that weight for age is an important indicator. So ऐसे we have weight as a criteria for adults also, right? So when we talk about normal weight, तो जो नॉर्मल वेट होता है दैट इज डिजायरेबल, जो होना चाहिए। अब आपका कितना है दैट इज योर प्रेजेंट वेट, राइट? सो इसका जो हॉलमार्क तरीका होता है आपकी बुक में डिफरेंट डिफरेंट उसमें दे रखा है, बट आई टेल यू वेरी सिंपली। नॉर्मल वेट तो हो गया जो आपका वेट होना चाहिए, दिस इज द डिजायरेबल वेट। जैसे हमने बच्चों के केस में वेट फॉर एज चार्ट्स देखे थे, राइट? तो हमने कहा था ना कि प्रेजेंटली ये बच्चा 7 महीने का है और इसका वजन में भी 5 किलो है, जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? और हो सकता है कि उस बच्चे का वेट 7 किलो आया हो या 4 किलो आया हो, बट आपने उसको किससे कंपेयर किया था? रेफरेंस WHO स्टैंडर्ड से, ओके? बट यू विल थिंक दैट दो लोग सेम वेट के हो सकते हैं पर उनका बॉडी कॉम्पोजिशन भी अलग होता है। दिस वी डिस्कस आई थिंक इन द लास्ट क्लास ऑल्सो। इफ देर इज अ एथलीट जिसका वेट भी मान लो 75 है और एक दूसरा बंदा है जो सेडेंटरी है उसका वेट भी 75 है, तो जब हम BMI कैलकुलेट करेंगे ना तो वो तो सीधा ये देखेगा कि, और शायद दोनों की हाइट सेम है, तो इफ आई से यू दैट दिस मैन इज 5'8", राइट, और दोनों का जो वेट है वो 75 है, so it's okay, to have a picture of that, and we only have BMI as a criteria for adults, so it is fine. But beyond, the weight, you also have to look into the composition. अगर वो एथलीट है और उसका वेट 75 है, तो उसके केस में जो मसल मास है, जो लीन मास है, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द अदर पर्सन जिसके केस में मे बी लीन मास कम है और फैट परसेंटेज ज़्यादा है, right? So you have to think that, right? Lekin it is also true that as you age, beyond the age of 30, 35, you will see that constantly on an average, you do increase, half to 1 kg of weight. But अगर ये बहुत ज़्यादा proportion में है, then you need to take care of, right? So maybe you need to indulge into some physical activity or so on, okay? देन दी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज वेट फॉर हाइट। ये हमने एक्चुअली में बच्चों के केस में भी पढ़ा था कि लो वेट फॉर हाइट इज नोन एज वेस्टिंग, राइट? तो इन अडल्ट्स ऑल्सो वी हैव एन इंडेक्स जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एंड दे हैव गिवन यू कि हाइट के हिसाब से किसी भी मेन या वुमेन का वेट कितना होना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, राइट? यहाँ पे इन्होंने चार्ट गिवन है, ये देखो कि अगर आपकी हाइट मान लो 5'3" है, जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? सो इफ यू आर अ वुमेन, योर वेट आइडल, इसको हम बोलते हैं आइडल बॉडी वेट, IBW, राइट? सो योर आइडल बॉडी वेट शुड बी समवेयर बिटवीन 57 समथिंग टू 62 kgs, राइट? और अगर आप मेन हो देन इट इज सॉरी, फॉर मेन दिस इज जितना, एंड फॉर वुमेन इट इज 54 to 58 kgs। एंड ऑब्वियसली मेन और वुमेन में भी डिफरेंस इसलिए होता है बिकॉज मेन और वुमेन का बॉडी कॉम्पोजिशन वैसे भी अलग होता है। You will see more of adipose tissue in case of women when you compare them to men. Men की बॉडी में हमेशा जो मसल मास होता है वो यूजुअली ज़्यादा होता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम्स, ओके? इफ दैट पर्सन इज कम्प्लीटली इनएक्टिव, बहुत ही बुरा डाइटरी लाइफस्टाइल है, दैट इज डिफरेंट। बट बाय डिफॉल्ट women दे आर लिटिल चबी ना, राइट? उनका जो फैट डेपोजिशन है वो हिप्स में होता है, राइट? अगर आप मेन का फैट पैटर्न देखोगे तो इट इज अराउंड द स्टमक एरिया, because these are also the type of fat pattern which we observe, and I'll discuss that with you, okay? But यहाँ पे you need to understand कि इन्होंने जो ये टेबल दिया हुआ है, this is actually like a reference table, कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो उसके हिसाब से आपका वजन इतना होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। अब भाई मैं टेबल खोल के कहाँ बैठूंगी? अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि भाई मेरी हाइट इतनी है तो आप मेरे को बताओ कि मेरा वेट कितना है, तो एक दूसरा रफ आइडिया लगाने का तरीका ये भी होता है कि जो भी उस
अडल्ट की हाइट है, मेन के केस में आप 100 माइनस कर दो और वुमेन के केस में आप 105 माइनस कर दो, तो यू विल गेट एन एवरेज पिक्चर की भी उसका आइडियल बॉडी वेट इतना होना चाहिए। अब कोई तुमसे तुरंत पूछ रहा है बिकॉज यू आर स्टडिंग न्यूट्रिशन, तो मेरे को बताओ कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, यू विल नॉट टेल हर ना कि अभी मैं बुक खोल के देखती हूँ, राइट? सो ऑन एन एवरेज वी से दैट दिस शुड बी योर वेट पैटर्न। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? मैम एक बार प्लीज वापस बोलेंगे? इट इज तो जस्ट एन माइनस एवरेज आइडिया कि आप हाइट में से 100 सेंटीमीटर्स माइनस कर दो। Can you hear me? Is there some disturbance? Can you hear me? Wait a minute, let me just check if there's something wrong. Yeah, am I audible, class? Yes. हाँ, सॉरी, ओके। सो नाउ दिस इज अ रफ आइडिया। ये तो रेफरेंस टेबल है आपको जो गिवन है, बट ऑन एन एवरेज इफ यू वांट टू टेल समवन दैट व्हाट विल बी योर आइडियल बॉडी वेट, तो एक एवरेज आइडिया आपको मिल जाता है विद इन इंडेक्स, ब्रोकास इंडेक्स कहते हैं इसको। बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि अगर मेन है तो उसके केस में आप उसकी हाइट में से 100 सेंटीमीटर्स निकाल लो, और अगर वुमेन है तो 105। जैसे वी कैन टेक एन एग्जांपल, सपोजिंगली आई से दैट दिस मैन हैज अ हाइट ऑफ 170, ठीक है? तो उसका आइडियल बॉडी वेट कितना हो गया? एनीवन? एनीवन? 70 kg. 70 हुआ ना, आपने 100 माइनस कर दिया, राइट? और अगर यही वुमेन है मान लो और उसकी हाइट 170 है, तो आप 170 में से 105 माइनस कर लो, सो दैट विल बी रफली दैट 65. आइडियल बॉडी वेट, ठीक है? Is this clear to everyone? So you can refer to these tables also, but roughly to get an estimate, this is how you can also depict it. But this is not a very scientific one; it is just an estimation. उसके आसपास ही आएगा, ठीक है? So people who have to do very intense dietary counseling ना, अब मेरे पास 100 बंदा खड़ा है, तो क्विकली आई कैन मेक आउट कि हाँ इसका जो आइडियल बॉडी वेट है वो इसके पास होगा, जस्ट टू हैव एन इंडेक्स दैट वेदर दिस पर्सन इज ओवरवेट और ओबीस और व्हाटएवर, बट अगेन दिस विल नॉट टेक इनटू अकाउंट द बॉडी कॉम्पोजिशन। इज दिस फाइन? Yes, ma'am. या देन एक सेकंड देना मुझे। But I just calculated mine, ma'am. काफी difference आ रहा है 50 और 55. हाँ, तो मैंने बोला ना एवरेज है, तो उन्होंने भी आपको रेंज दी हुई है, 5 kg का. Okay. उन्होंने भी आपको रेंज दी हुई है, जो अगर आप रेफरेंस वाले दोगे उसमें रेंज है। क्योंकि अगर मैं एक बात बताऊं, अगर आपको कुछ और भी एक और तरीका भी होता है, राइट? आप वो आई डोंट नो वेदर आई शुड टेल यू और नॉट, वो एग्जैक्ट तरीका होता है जिसमें साइंटिफिकली सारे के सारे डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट वर्क करते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है दैट फॉर फर्स्ट 5 feet इन केस ऑफ women you add something, ठीक है? एंड फॉर एडिशनल इंच ऑल्सो देर इज एनीथिंग एल्स, तो दैट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, इसलिए मैंने तुमको सिर्फ ये नॉर्मल वाला बताया, ठीक है? तो उसमें यूजुअली होता है कि 45.5 kg हम ऐड करते हैं, और हर फीट के लिए हम 2.3 ऐड करते हैं, ठीक है? और वुमेन मेन के लिए फर्स्ट 5 feet के लिए 48 kg ऐड करते हैं, फिर हर एक एडिशनल इंच के लिए 2.7 ऐड करते हैं, ठीक है? तो वो आपको देखना होता है कि अब ये 5 feet 7 inches है, तो पहले 5 feet का 45.5 हुआ, और हर एक एडिशनल इंच के लिए 2.3 हुआ। समझ में आ रही है बात? मैम अगर फॉर्मूला लिख देंगे तो आ जाएगा. मैं लिख देती हूँ, ठीक है? मैं साथ साथ लिख देती हूँ, बट लेट मी कंटिन्यू, फिर उसके बाद आई जस्ट राइट। ये फॉर्मूला एक्चुअली में ना है नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दीज आर द डिफरेंट वेज हाउ यू डू इट, ठीक है? Okay, so this was your chapter on this thing, and obviously you know कि अगर मैं body weight की बात कर रही हूँ, तो weight for height is one of the thing, इसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट दे रखा है। The other thing is कि देखो ये तो आइडियल है ना, अब मैं अगर इसके ऊपर हूँ या मैं इसके नीचे हूँ, तो मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, एंड दैट यू शुड नो, दैट वी टेक आउट यूजिंग BMI, राइट? कल मेरे को कोई BMI का टेबल बता रहा था, वो कौन से पेज पे है? एनीवन? आपकी बुक पे है कि BMI का टेबल? हैव यू सीन दैट? मैम ये जो वेट चार्ट आपने दिखाया है और जो वेट चार्ट हमारे पास है मेडिकल का जैसे, तो वो तो इससे काफी अलग है। अब देखो यार, ये तो तुम्हारी मैनुअल में है ना, आप कौन सा यूज करते हो? मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स आल्सो ना, इसमें दे हैव नॉट मेंशन व्हाट सोर्स दे आर यूजिंग। ओके।
ठीक है, तो आप जिसका भी रेफरेंस यूज कर रहे हो, दिस इज बाय LIC। ठीक है, आप कौन सा यूज कर रहे हो? मैम हमारा आई एम अ नेचुरोपैथ एक्चुअली, सो हमारे हाँ पास अपना आइडियल वेट चार्ट होता है। तो हाँ, उसमें तो एटलीस्ट मतलब जो रेंज है उसमें ही 3-3 किलो का फर्क इस चार्ट के हिसाब से दिखा रहा सी है। द थिंग इज कि अगेन व्हाट पैरा, जैसे मैंने बच्चों के केस में भी बताया था कि ग्लोबली यूज WHO चार्ट्स, राइट? अब हो सकता है हम्म। कि WHO चार्ट के हिसाब से वो बच्चा नॉर्मल कैटेगरी में आ रहा है, जस्ट एन एग्जांपल। लेकिन अगर मैं उसको अपनी कंट्री स्पेसिफिक पे लेके जाऊंगी, जैसे पहले IAP यूज होता था और अभी भी कुछ फिजिशियंस यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि वो कैटेगरी का फर्क हो, बिकॉज दे आर स्पेसिफिक ऑन इंडियन गाइडलाइंस एंड दिस टेक्स इनटू अकाउंट द ग्लोबल पिक्चर। तो यहाँ पे भी LIC के अलग होंगे, जैसे मैंने तुम्हें वो रफ वाला फॉर्मूला बताया उसमें, एंड देन दी अदर इंडेक्स जिसमें मैंने बोला कि 45.5 होता है फर्स्ट 5 kgs के लिए, फर्स्ट 5 फीट के लिए, एंड 2.3 kg होता है हर एक एडिशनल इंच के लिए। सो व्हाट फॉर्मूला यू आर यूजिंग, व्हाट रेफरेंस यू हैव, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। अगर ओके। आपके पास रेफरेंस है, यू कैन यूज ठीक है, बट हमारा जो डायटेटिक्स फील्ड है उसमें जनरली वी यूज दिस 45.5 वाला। Can you please repeat, ma'am, what you said? 45.5 वाला जो था वो प्लस how to 2.3 calculate? होता है इन केस ऑफ वुमेन। आई शेयर दैट टेबल विद यू इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी, ठीक है? Okay, okay, हाँ. ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और BMI जो है वो 25 के ऊपर ओबीज है इंडियंस के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द WHO क्राइटेरिया फॉर इंडियंस, जहाँ पे अगर आपका बॉडी वेट 25 BMI 25 kg पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा निकलता है, दैट इज डिपिक्टिव ऑफ ओबेसिटी, ओके। एंड नॉर्मल रेंजेस 18.5 टू 22.9। अगर 23 से 25 के बीच में हो तो ओवरवेट हो, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स इन दिस नाउ? एनी अदर क्वेश्चंस यू वांट टू ऐड? Okay, so with this we are continuing, and this will be another 15-20 minutes ka this thing. I'll continue with adulthood. Okay, so now again this will be interrelated because अभी आपने normal adult की ही energy requirements और बाकी सब पढ़े हैं, ठीक है। So adult जो हमने men और women की definition पढ़ी थी जब हमने ERs पढ़े थे, and we know that you know after 60 years of age, because you are aging, you are into old age, तो आपके ER will be different, right? And this I also discussed कि ये जो है आपके जो ER के details table है उसमें mentioned है कि you know after age of 60 years you need to focus on your total calorie intake, and that is why because your BMR is decreasing, your physical activity is decreasing, so you need to have different sets of EARs जिसके लिए अलग टेबल गिवन है। तो जब मैं ये अडल्ट मेन और वुमेन की बात कर रही हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर ओवर 19 बट लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और वो अडल्ट मैन अडल्ट वुमेन की रेफरेंस मैन और वुमेन की डेफिनेशन है। नाउ अगेन इसमें BMR और ये सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, विच इज सॉर्ट ऑफ रिपीटेटिव ओनली, ठीक है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, सो नाउ वी नो दैट यू नो व्हेन वी कंपेयर द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, particularly energy requirements between men and women, you will actually realize that men have, अब sedentary men और sedentary women में भी difference है ना, दो both of them are sedentary, I think one की 1660 है और men की शायद 2110 है, right? So why both of them are belonging to sedentary? तो why there is this differentiation? Because जब उन्होंने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की बात की, BMR की बात हुई, और BMR का सीधा लिंक जो है वो आपके बॉडी कॉम्पोजिशन से होता है, एंड वी नो दैट बिकॉज men tend to have more muscle mass, their BMR is comparatively higher than women who tend to have more of adipose mass, ठीक है, या फैट मास। सो दैट इज व्हाई यू विल सी दैट naturally the requirements for men for energy are higher than the women. Is this clear? Is this fine to everyone? ठीक है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखोगे जब अपना ER टेबल दोबारा से खोलना, उसमें जितने भी तुम्हारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये हमने तब भी किया था, थायमीन, राइबोफ्लेविन, व्हाटएवर, राइट, दे आर आल्सो गिवन कैटेगरी वाइज बेस्ड ऑन योर activity level, right? Why so? Because activity level influences your energy requirements, and these vitamins, you know, they participate in energy metabolism.
तो अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, इन वाइटामिन्स की भी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कभी कम होगी तो हो सकता है कि ये वाइटामिन्स की भी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में उतनी हाई ना हो। So that is why you will realize that water soluble vitamins like thiamine, riboflavin, niacin, they actually are required for energy का metabolism. So अगर आप men और women को भी compare करोगे तो again women will have lower requirements than men. Why? Because उनका energy requirements men से कम है और ये जो water soluble vitamins होते हैं they actually participate as factor and co-factor in energy metabolism reactions. Is this fine with everyone? The major difference which you will be seeing is in the iron requirements. Okay, so obviously we all know that women have higher requirement of iron because of the menstrual losses. Okay, so whatever iron is lost through regular bleeding or monthly bleeding, that needs to be replaced. So इसलिए जो women की iron की requirements होती है, अगर एक starting difference देखोगे, that are higher than in men. Okay, so they have shown you this particular table जहाँ पे sedentary man का the food group comparative chart is there, and this is for the sedentary women. Okay, now obviously because women की requirements energy की कम है तो आप देखोगे जो कुछ कुछ food groups हैं वो उन्होंने कम किए हुए हैं। जैसे आप देखो cereals and millets, in case of men it is 275 and pulses and non-veg is 80. In case of women they have reduced that to 260. But if you look at other important aspects, other vegetables, roots and fruits, वो देखो almost दोनों में same है। So, to counteract calories, they have decreased substantially the group which gives you maximum amount of calories. Okay, that is your carbohydrates. So, this is a sample plan which they have given you, and these are some questions. Okay, okay, then you have diet and social considerations. So, we know हमने ये पढ़ा है कि जब हम इन्फेंसी के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे थे और पर्टिकुलरली इन केस ऑफ स्मॉल किड्स एंड चिल्ड्रन, वी नो कि अगर हम पर केजी कैलोरीज कंप्यूट करेंगे अडल्ट्स के लिए, इट इज मच लोअर देन दी इन्फेंसी पार्ट और द चिल्ड्रन पार्ट, राइट? बिकॉज बिकॉज उनका जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। इन्फेंसी में द ग्रोथ इज हाईली एक्सेलरेटेड, बट व्हेन यू आर इनटू अडल्टहुड, यू हैव रीच अडल्टहुड, आपको सिर्फ एक मेंटेनेंस के लिए ये सब चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है? दो आपके जो सोशल ऑब्लिगेशंस है वो हो सकता है कि ज्यादा हो, सो दैट इज ऑल टेकन टुगेदर इन योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, then fulfilling nutrient needs at different socioeconomic levels. So that is all related to how well you organize or you have an intake of these nutrients as per someone's socioeconomic strata. Okay, uh, इन्होंने ये देखो एक चार्ट दिया हुआ है, फूड चॉइसेस फॉर एन अडल्ट मैन, एंड दे हैव शोन दैट लो इनकम, मिडिल इनकम एंड हाई इनकम में ये कैसे डिफर कर सकता है। सो दिस इज नॉट समथिंग जो होगा बट अ रफ आइडिया। सो यू कैन सी that in cereals का intake, अगर आप देखोगे तो people who are little economically not very well off, right, you will see कि उनके केस में जो cereal का consumption होता है वो ज़्यादा होता है। if you look at your house helps, right, or some people who come in your house for helping in other people, you will see कि comparatively हमारा जितनी हम रोटी, जितना हम carbs या चावल खाते हैं उनका intake ज़्यादा होता है, because they fetch maximum calorie from carbs food, taking into account the economic factors also, right? But then you will see कि अगर मैं मीट फिश की बात करूं तो हो सकता है कि a low income person or a middle income person has that less frequently in comparison to a high income group person. But then what in meat is also different, right? Fish is very expensive. Like if you're going for some sort of very exotic fishes, it is very expensive in comparison to maybe a chicken, and then maybe a egg, which maybe I can consume on regular basis if I have no financial issues, or maybe once a week if I have some moderations. Okay, so they have given you just an example of fruits है। तो अगर आप लोअर इनकम की बात करोगे, maybe they are the people who do not who are not dependent on too high intake of fruits, but then what in fruit is also dependent. If you are planning a diet for a high income person, then you can go in for some exotic fruits like kiwis also and other things also. अगर आप middle या low को belong करते हो, then we are the people who consume these seasonal fruits also very well off. Okay, so they have given you just this contrasting shift between these two things. Okay, so I think you can go through that. This is comparatively very simple. Okay, so this was your adulthood and energy requirements. So now
Any doubts, anything which I need to repeat, please let me know. Or up, because I suppose that you might have gone through your earlier notes also. So I think we can stop here, right? और बाकी के जो 2-3 छोटे छोटे chapters हैं that I have divided for future classes also. अब यहाँ पे मेरे को बताओ कोई चीज़ you need to understand, discuss, you want me to repeat, please do that. हाँ जी बताओ, कुछ भी दिमाग में आ रहा है जो पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा होगा. So now you need to ask questions for me. It is your this thing. Yeah, please class, you need to communicate and you need to answer also, okay? We understand, ma'am, but at present no question coming in mind. ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि खास पढ़ा नहीं है ना मैम. अब खास पढ़ने में तो फिर क्लासेस खत्म हो जाएगी तो फिर कैसे करोगे? Others also please. वैसे भी generally if you want to discuss anything, that also we can do, okay? Because I don't want to start with the next chapter because फिर it becomes complicated. So let's keep it light so that you know you are able to absorb also. बाकी सब anything class? Okay. So I'll give you a question then. Yeah. Yeah, okay. So just write down 2 figures every and that should be done by everyone, okay? But I don't have the answers for that, so please. So you can write कि एक men है, ठीक है, जिसका height is I'll just give you 178, ठीक है, you can just write. So adult men and उसका height is 170 centimeters and weight is 89 kgs, ठीक है, and then you have adult women. Ma'am, you gave 2 different heights of man. No, मैंने चैट बॉक्स में लिखा है adult men 170 centimeters and 89 kg is the weight, okay, and women का it is 152 centimeters height and 58 kgs weight. दोनों का BMI निकालो और कैटेगरी बताओ कि कौन सी कैटेगरी में. And I think this everyone should do it because then only you will have a practical distance to that. तो अडल्ट मैन की हाइट है 170 एंड 89 एंड अडल्ट वुमेन की हाइट है 152 एंड 58. So men and women, one subject, calculated, and just let me know that what is the BMI for both of them and what category they fall in. Please do that. Back and share your answers then.
हाँ जी, निकाला आप लोगों ने? BMI for women, हाँ जी, it came to 19.07, and for man it came to 26.17. No, एक मिनट। 30.8 and मैम 25. मैम वुमेन के लिए 25.2 एंड मेन के लिए 30.7। हाँ, पॉइंट्स का डिफर कैन हैपन बिकॉज व्हेन यू आर स्क्वायरिंग दी हाइट ना, तो वो हो हाँ सकता है कि किसी ने 1 डेसिमल लिया है या 2 डेसिमल लिया है। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस आई थिंक दोनों का BMI किस में आ रहा है? Obese and overweight. Obese. ओवरवेट। नहीं यार, overweight आ गया। ओवरवेट कौन सा है? ये वाला मैम Woman. 25.2। 25.2 ना? हाँ वो ओवरवेट में जाएगा ना मैम। नहीं, ओबीज में आएगा। 25 के ऊपर इज ओबीज। ओबीज आएगा मैम। हाँ, इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 25 इज ओबीज। अच्छा ठीक और है, 30.7 वो तो ओबीज ही है। हाँ वो तो ओबीज ठीक ही है, है। तो 25 या 25 के ऊपर इट इज ओबीज। ओके ओके 25 के ऊपर है इसके लिए। हाँ, ठीक है, सो दैट वर्ड। नाउ आई विल शो यू वन ऑफ द ग्रोथ चार्ट्स आल्सो बिकॉज़ मेरे को पता है किसी ने नहीं देखे होंगे। तो एक सेकेंड, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। सो दीज आर WHO growth charts which I'll just show you. कौन सा चार्ट आया जिसके पास? Not this one. Okay, I'll share this one also, but इससे पहले you need to understand the other one. Just give me a second. Okay, this one. Can you all see this one? No, पहले आप दिख दिख रहा रहा था है? हाँ now yes. हाँ, ओके, सो Yes. दीज आर द चार्ट्स। ठीक है, तो ये वेट फॉर एज गर्ल्स का चार्ट है। इसमें आप देखोगे बर्थ टू 6 मंथ्स गिवन है, राइट? तो अगर आप WHO के ये लिंक पे जाओगे, यू विल हैव अप टिल व्हाटएवर एज एंड जेंडर दिस चार्ट्स आर गिवन। ठीक है, तो एक्चुअली में जो हमने वो वेट फॉर एज की बात की थी ना, उसको आपको प्लॉट करना पड़ता है। वो जो आपको एक टेबल दिखाया गया था दैट वाज रेफरेंस टेबल, कि अगर ये मंथ है तो उसको इतना एज, अगर ये एज है तो उसका उतना वेट होना चाहिए एंड सो ऑन। बट दिस इज एक्चुअली हाउ यू डू दी प्लॉटिंग। ठीक है, और ये पिंक कलर का चार्ट इज फॉर गर्ल्स एंड देन आई ऑल्सो शो यू द अदर वन विच इज फॉर बॉयज। ठीक है, तो वो जो है मैं दिखा देती हूँ साथ साथ। जैसे ये पिंक बॉर्डर एंड एवरीथिंग है, सो दैट इज फॉर दिस थिंग एंड यू विल हैव द अदर वन फॉर बॉयज। दिस वन, कैन यू सी दैट? ठीक है, तो प्लॉटिंग के टाइम आप लोग मिस्टेक ना करो, इसके लिए दे हैव कलर कोडेड दैट पिंक एंड ब्लूज। ओके, द डिफरेंस बिटवीन देम विल बी दीज लाइंस। तो आपको ये ऐसे वेट फॉर एज, ऐसे ही हाइट फॉर एज अगर होगा तो ये वेट की जगह हाइट आ जाएगा और नीचे आपका एज गिवन है। ठीक है, वेट फॉर हाइट आएगा तो नीचे आपकी हाइट गिवन होगी एंड देन यू नीड टू प्लॉट द वेट। सो डिपेंडिंग अपॉन वट एवर इंडिकेटर यू आर यूजिंग यू विल हैव दीज सॉर्ट्स ऑफ चार्ट। ठीक है, तो अब अगर मैं ये सपोजिंगली बॉय का ही ले रही हूँ, ठीक है, तो यू कैन सी नीचे 6 मंथ्स तक आपको एज दिख रही होगी। ठीक है, ये, so this is your age which has been given up till 6 months of age. Okay, and then you can see that you have weight on the y-axis. Okay, now what happens is that you can see these lines. ये lines दिख रही है, ये curves दिख रहे हैं, so these are reference lines which have been computed statistically using those tables only जो हमने किया था। ठीक है, अब उसमें आप देखोगे ये जो central line है, ये green line, this is 0. So ideally the child should fall on or nearby this line. तो अगर आप किसी भी बच्चे का वेट फॉर एज, इस केस में बॉयज का, अगर आप असेस कर रहे हो और मान लो कि उसकी मदर आपके पास आई एंड शी सेज दैट माय चाइल्ड इज सपोजिंगली 3 months old, जस्ट एन एग्जांपल, एंड ही वेज 4.5 kgs। ठीक है, तो आप यहाँ जाओगे, ये 3 months है। ठीक है, उसके बाद आप 4.5 देख लो कि कहाँ पे है। सो यू विल गो पैरेलली लाइक दिस एंड यू विल make a dot.
So this dot has to be very specific with a clean, sharpened pencil. थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे तो बच्चे का nutritional status बदल जाएगा. Now all over, what is the look about this graph is that you will see that you have different categories of different linings here. ठीक है, तो आप ये देखोगे, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर दूं. So अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे you have 0, ठीक है, देन यू हैव पॉजिटिव नंबर्स ऊपर एंड नेगेटिव नंबर नीचे. यू कैन सी ना -2, -3 एंड ऊपर की तरफ इट इज +2 एंड +3. सो दिस 0 इज एक्चुअली आइडल और रेफरेंस. बच्चा इस लाइन के जितनी पास है दैट मीन्स द चाइल्ड इज ग्रोइंग नॉर्मली. जितना ऊपर या जितना नीचे जा रहा है मतलब वो उतना ही एक स्टैंडर्ड से डिविएट कर रहा है. तो अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है दैट शोज अंडरवेट. लो वेट फॉर एज को हमने अंडरवेट बोला था ना. और अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट शोज व्हाट, दैट द चाइल्ड इज गेटिंग ओवरवेट और ओबीज, बिकॉज इस एज पे उस बच्चे का जितना वजन होना चाहिए उससे ज्यादा उसका हो रहा है. तो दैट इज व्हाई यू विल सी पॉजिटिव नंबर्स ऊपर व्हिच इज डिपिक्टिव ऑफ व्हाट, ओवर न्यूट्रिशन. जितना है उससे ज्यादा है, राइट. एंड देन अगर नीचे है तो दैट इज योर अंडरवेट, राइट. एंड देन इंटेंसिटी मैटर्स. अब देखो किसी बच्चे का पॉइंट अगर ये -2 और -3 के बीच में आ रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग. -3 के नीचे आ रहा है तो यू कैन सी ना दैट द चाइल्ड इज सीवियरली अंडरवेट. सो दिस और कैटेगराइजेशन इज गिवन बाय WHO. तो अगर कोई बच्चा 0 से -2 के बीच में आ रहा है हम उसको बोलते हैं कि वो नॉर्मल है. यू कैन सी ना दिस रेड लाइन. तो मतलब ग्रीन और रेड के अगर बीच में है, चाहे इधर चाहे इधर, so that means he somewhat the child has normal weight as per the age. पर अगर ये -2 और -3 के बीच में आ गया that means we say that the child is underweight. So quickly when mothers comes I will plot this chart for the child. मैं देखूंगी कि उसका स्पॉट डॉट कहाँ आ रहा है. तो उसका डॉट जहाँ पे भी आ रहा है आई विल बी एबल टू मेक आउट कि भी अगर 0 और -2 के बीच में आ रहा है दैट मीन्स द चाइल्ड इज नॉर्मल. अगर -2 और -3 के बीच में आ रहा है दैट मीन्स द चाइल्ड इज अंडरवेट. पर अगर ये -3 से नीचे आ रहा है दैट मीन्स द चाइल्ड इज सीवियरली अंडरवेट. समझ में आ रही है बात. और अगर वो ऊपर की तरफ आएगा सो दैट विल बी लाइक ओवरवेट इन ओबेसिटी. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है. एंड देन दी अदर थिंग इज कि ये जो चार्ट्स प्लॉट होते हैं इट इज WHO. यू जस्ट नीड टू गो ऑन टू द WHO वेब पेज एंड यू विल फाइंड दीज चार्ट्स. अगर लिंक शेयर करना है तो आई कैन शेयर विद यू. जस्ट गिव मी अ सेकंड. चैट बॉक्स में आई हैव गिवन यू द लिंक आल्सो. ठीक है, तो वहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग अदर ग्रोथ. अब दूसरी चीज इसमें क्या होती है इम्पॉर्टेंट कि देखो अब ये मदर आपके पास 3 मंथ्स पे आई, आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, जस्ट अ हाइपोथेटिकल थिंग. ठीक है, वो 4 मंथ्स पे आई, आपने यहाँ पे कर दिया. तो दिस इज द थिंग जब आप मंथ वाइज मंथ प्लॉट कर रहे हो ना, 3rd मंथ पे इधर था, 4th मंथ पे इधर हुआ, 5 मंथ पे इधर हुआ. बट व्हाट हैपेंस टेक्निकली इज दैट व्हेन यू प्लॉट दीज चार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो मदर वो बर्थ से मे बी बच्चे को लेकर आ रही थी और बर्थ से आते आते तक अब वो बच्चा 5 महीने का हो गया. तो आपने हर मंथ बच्चे का कुछ ना कुछ तो प्लॉट डाला होगा ना, आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा, राइट. तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हो, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नजर रखते हो कि ये डॉट्स कहाँ जा रहे हैं. ठीक है, तो सपोजिंगली 1st मंथ का आपका आया था यहाँ पे, मैं इसलिए थोड़ा मोटा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, इतने मोटे प्लॉट्स नहीं होते हैं. ठीक है, वो नेक्स्ट पे आया, यहाँ आ गया, उसके नेक्स्ट पे आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप हर मंथ मदर को या उसके पेरेंट को ये बता रहे हो कि इस महीने में जी आपका बच्चा नॉर्मल था, यहाँ पे भी नॉर्मल है, यहाँ पे भी ठीक है. अब उसके बाद ये बिल्कुल लाइन बराबर आई. ठीक है, ये तुम कंसिडर करो कि दोनों डॉट्स जो हैं वो सीधे जा रहे हैं. उसके बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ. ठीक है, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये नीचे आ गया एंड सो ऑन. तो वो बात अलग है कि आप हर मंथ पे टेक्निकली पेरेंट्स को बता रहे हो कि इस महीने पे नॉर्मल है, इस महीने पे भी ठीक है, इस महीने में थोड़ा स्टेशनरी हो गया, कम हो गया. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम if I want to assess that how this child is growing, ठीक है, so in that case this is important, right. Why this is important? Because I need to see मैं हर मंथ ना ये जो डॉट्स हैं इनको ज्वाइन करती जाती हूँ. ठीक है, आई शो यू हाउ. जैसे ये इनको मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, तो आप देख रहे हो एक कर्व बना रहा है. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी मीन बाय ग्रोथ कर्व, GC. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं,
ग्रोथ कर्व, राइट? जो आप हर महीने पे डॉट्स को ज्वाइन करते चले जाते हो, रफ हैंड, राइट? एंड दैट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ लाइन, सम सॉर्ट ऑफ कर्व, दैट इज नोन एज ग्रोथ कर्व. And actually the direction of growth curve will help you in understanding the pattern of the growth of the child, right? So we usually say you have three growth curves: upward, stationary and downward. Is this clear? ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे ग्रोथ कर्व जा रहा है, यू हैव अपवर्ड, यू हैव स्ट्रेट एंड यू हैव अ डाउनवर्ड कर्व. ठीक है, तो इसको बोलते ही ऐसे हैं, दिस इज अपवर्ड, राइट, दिस इज स्ट्रेट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डाउनवर्ड. अब यहाँ से यहाँ देखो, ये जो हो रहा है, दिस इज व्हाट अपवर्ड ना. तो आप अगर पीछे ये ग्रोथ चार्ट को खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले 3-4 महीने तो बच्चा बढ़ ही रहा था, तभी उसका जो ग्रोथ कर्व है वो क्या था, वो ऊपर की तरफ जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बच्चे की एज बढ़ रही है और यहाँ पे एज के हिसाब से बच्चे का वेट भी बढ़ रहा है. फिर मान लो कुछ ऐसा हुआ कि ये स्ट्रेट हो गया. अब स्ट्रेट का क्या मतलब है, एज तो नहीं रुकेगी ना, एज तो बच्चे की चल रही है, बट देयर इज सम प्रॉब्लम विद द चाइल्ड, क्योंकि जब मैंने उसको पिछले महीने वेट किया था तब भी उसका स्टेशनरी था, उसके पिछले महीने में मे बी इट वाज 3.5 and this month also it has come out to be 3.5. So this stationary curve is actually very very important because it is the point जहाँ पे intervention is required. अगर आपको किसी भी बच्चे के ग्रोथ पैटर्न में स्टेशनरी दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दैट मीन्स देयर इज सम अंडरलाइन कॉज. हो सकता है बच्चे को कोई इन्फेक्शन हुआ हो, डायरिया हुआ हो, मीजल्स हुआ हो, कुछ डेफिशिएंसी है या कुछ प्रॉब्लम थी जिससे डाइटरी इनटेक कम हो गया. So that is why the child is not gaining weight, and that is why we say that this phase is critically very very important. Because अगर आप यहाँ पे उसको right type का intervention नहीं दोगे, intervention मतलब whatever corrective measure you want to give, whether in terms of medical, आपको दवाई, antibiotics, whatever you want to give, or in terms of dietary, right? You need to give it to the child. अगर ये phase को आपने neglect कर दिया, तब क्या होगा, then over the period of time the child might start to lose weight, right? And when he or she is losing weight, you will see a downfall, that is known as a downward. Okay, so this is the total thing related to how you plot graph and how you interpret them. So I hope this is clear to everyone. This was just to give you an idea कि ये होता है reality. ठीक है, तो तुम्हें सब कुछ superficially ना लगे. Is this fine? Yeah, after opening link you need to go on to the right side जहाँ पे उन्होंने चार्ट, लेफ्ट साइड जहाँ पे स्टैंडर्ड्स करके कॉलम आ रहा है. फिर जब आप स्टैंडर्ड्स को क्लिक करोगे उसमें यू विल हैव ऑल दीज थिंग्स. मैम एग्जाम में ये सब आएगा? नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए. ओके मैम. ठीक है, अब जब आपने वेट फॉर एज की इतनी बड़ी कहानी पढ़ी है तो प्रैक्टिकली क्या होता है वो भी तो पता होना चाहिए. यार ये हमको लगा शायद वो ग्राफ पेपर ग्राफ शायद प्लॉट नहीं आएगा, बट यू हाँ. शुड नो कि जैसे उन्होंने रेफरेंस स्टैंडर्ड दिखाए थे तो वो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ से प्लॉट हुए थे. मैम नीचे जो लिखा है वो वो वीक्स है ना मैम? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स है, राइट मैम? हाँ, तभी वो 3 मंथ्स तक उन्होंने वो किया हुआ है. हाँ 3 मंथ्स तक किया है. हाँ, और बाजू में केजी में वेट है, राइट? 2, 3, 4 ऐसा, केजी राइट? में है. हाँ, तो वो 2 और 3 का देन यू विल हैव टू टेक 0.5. एंड एक्चुअली ना ये सब करने के लिए भी सॉफ्टवेयर है WHO का ही, जो तुम्हें अच्छा. WHO के वेब पेज पे मिल जाएगा. दैट इज एंथ्रोप्लस, एंथ्रोपोमेट्री है ना. तो वो एंथ्रोप्लस में क्या होता है, दैट यू क्विकली गो, यू फीड इन दी डेटा कि बच्चे की हाइट, वेट, व्हाटएवर इतना है, एंड ऑटोमेटिकली दैट विल प्लॉट अ ग्राफ फॉर यू एंड इट विल टेल यू द कैटेगरी आल्सो. ओके, थैंक यू. ओके जी, एनीथिंग एल्स व्हिच आई नीड टू डू? कुछ और रिपीट करना है? और किसी को कोई डाउट्स? दैट्स इट. मैम आप प्रैक्टिस करते हैं दिस न्यूट्रिशन और यू आर ओनली प्रोफेसर? No, I have practiced also and I'm involved in some sort of projects also. And basically, yes, I work as an assistant professor. ओके, थैंक्स. Okay, so that's it. पता है, नो क्वेश्चंस वाला सिनेरियो सिर्फ 2 जगह होता है, यहाँ तो कुछ भी समझ में नहीं आया या पता नहीं सब कुछ ही समझ में आ गया. अब तुम कौन से साइड में हो ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा. तो प्लीज, हाँ, आई वांट टू टेल यू दैट बहुत थोड़े लोगों ने शायद कुछ पढ़ा है.
and rest people are struggling, and we all have to study basically. So please study, because I will meet you only, I think 2 classes are left or 3. So please go through your syllabus if there Friday. is any doubt. 3 Next बची हैं और class. Next is Friday and Saturday now. बस 2 ही रहती है ना. फ्राइडे सैटरडे एंड मंडे भी है मैम शायद. नहीं, फिर आपका नहीं है शायद, ये देखना पड़ेगा. अच्छा. So whatever. So please start revising, ठीक है? And if you want me to repeat some unit again, जो तुम्हारे लिए that is difficult to understand, because अब तुम्हारे 2-3 बहुत basic chapter बचे हैं, so please let me know. I'll repeat that also. Okay. ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी particular unit है which you need to redo with me, I can take up that also. ठीक है जी, so that's it. Thank you. Yeah. ठीक है, then we will meet in the next class now. और please पढ़कर आना. आपका 19 तक है मैम लास्ट. That means Monday ना, that includes Monday. हाँ 19 है ना, तो मंडे को तो I'll keep everything for your doubts and everything, but please for this Friday and Saturday class, अभी भी if you have anything which I need to repeat, you can tell me कि ये वाला unit I need to redo. So if you want time, you can take 5 minutes, just flip through and just let me know the chapter which I need to redo. Because अब बहुत basic एक आधा chapter बचा है, बाकी सब I have done, I think मेरे हिसाब से. मैम एक और, some of us are planning for December exam. That's अच्छा, another thing. Yeah. तो तुम एग्जाम से पहले ही पढ़ोगे मतलब. हम सब काम भी करें ना, like I am a working professional. See, तो what वो I would suggest you कि rather than giving all 3 exams in December, I don't know how prepared you people are, right? Give at least like one in in my December. case, I am doing only CFN 1 for June, हाँ. and then 2 and 3 I am planning for No, December. that's better because तीनों के तीनों तब दिसंबर में करोगे, तो give 1 or 2 here so that your load can also be balanced out. That's the plan, ma'am. हाँ. But they are quite interrelated, so no harm in learning and studying with you, and understanding That's the another things thing. so much. Yeah, that's another thing. Because counseling sessions तो तुम्हारे एक ही बार होंगे ना, उनको ही क्या लेना, तुम एग्जाम कब लोगे. जी मैम. Yeah, ठीक है. So that's it. Then I will keep on and I'll see you on next class. ठीक है. और किसी को कोई डाउट्स है, so I'm here only. Others of you can leave if you want. So I'm closing the call then if there is no question. Yeah, ma'am. Thank you. Yeah. Yeah, thank you. Okay, bye-bye. फिर भी I'm here Thank for you, another ma'am. 5 minutes. Right. Thank you, ma'am. Yeah. Okay, bye-bye.